Good morning, student. Today, once again, I am present here with the same topic, electrical fundamentals. इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स में हम लोग चार्ज के बारे में पिछले सप्ताह पढ़ा था। आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज एटम्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तब इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक करंट बताना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में जब जानेंगे तो थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट को समझना आसान रहेगा। एटम्स के बारे में ऑलरेडी क्लास 7-8 से मैंने आपको बताया है कि एटम क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मैटर से हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। ओके, हियर the smallest particle of element which may or may not independent existence but always take part in the chemical reaction. Okay, atoms are the basic building blocks of ordinary matter. Atoms are composed of particles called proton, electron and neutron. You can say that atom is the smallest particle of the matter. Okay, and it is also composed by electron, proton and neutron. Okay, here you see in the figure of an atom. In this figure, this is the कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम। एटम को हमने तो कह दिया कंपोज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन? ओके, तो एवरी एटम हैज अ वन सेंटर पार्ट। जो आप देख रहे हैं, दिस इज द सेंटर पार्ट of the atom. It is called nucleus. Okay, where present proton and neutron, and electron move around the nucleus in cell. Okay, in circular path. Okay, so this is the construction of atom. You see here also a single atom consists of three, जो ऊपर लाइन कहा गया है, a single atom consists of three basic components: a proton, neutron and electron. Within the atom there is a nucleus. Every atom have one nucleus. The nucleus contain the proton and neutron. Already I told you. Around the nucleus are the electrons. न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहते हैं। इसको एटम के कंस्ट्रक्शन को कंपेरिजन किया गया है, कंपेयर किया गया है सोलर सिस्टम से। मीन्स सन इज द सेंट्रल पार्ट, सोलर सिस्टम का सन जो है सेंटर पार्ट में है, और जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं, इन सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, एन एटम is similar to miniature solar system, as with the sun is the center of the universe. The nucleus is in the center of the atom. Proton and neutron are contained inside the nucleus. Okay, मीन्स कंपेयर किया गया है सोलर सिस्टम के द्वारा कि एटम का भी कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरह से है कि सेंटर पार्ट में आपका न्यूक्लियस है, वेयर प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। हियर व्हाट इज द न्यूक्लियस?
The nucleus is located in the center of atom. जस्ट नीचे एक फिगर है उसमें आपको दिखाएंगे shown in red. The nucleus contain proton and neutron. Orbiting around the nucleus are the electrons. Okay, and same here about proton. Proton are located within the nucleus of the atom. Shown in blue. नीचे एक इमेज है आपका उसमें हम बताएंगे protons are positively charged. Okay, here say that okay, proton has positive charge and neutron here. Neutron add atomic weight to an atom shown in green, and electrons orbit around the nucleus of the atom shown in yellow. Electrons are negative charge since electrons are lighter than proton and are outer the nucleus. They can be easily moved from atom to atom. Okay, means electrons is a negative charge, proton is a positive charge, but neutron have no charge. Normally, electrons are prevented from being pulled into the atom by the forward movement their rotation. Electrons are also prevented from flying away because of the magnetic attraction of the protons inside the nucleus. The same type force that keep the planet orbiting around the sun. Okay, here जो अभी ऊपर बात किया जा रहा था न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो हियर you see here yellow color represent to electron, okay, red color represent to nucleus, this blue color represent to proton, and green color represent to neutron. Okay, and on electron have a negative charge, proton on positive charge, and neutron have no charge. Okay. Balanced atoms. Atoms normally have an equal number of electrons and protons. ये क्लास 7-8 में जब मैं आपको एलिमेंट के बारे में बता रहा था कि हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ एलिमेंट इन इजी वे, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था कि जब आप उस लाइन को, उस दोहे को रिमेंबर कर लेते हैं तो आसानी से एलिमेंट्स के नाम याद कर लेते हैं। एलिमेंट्स के नाम याद होने के बाद एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर हो जाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो नॉर्मली कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम हैव इक्वल, नंबर उनके जो इक्वल होते हैं। एटम्स हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, मीन्स जब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, दे हैव नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, दे आर नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव चार्ज, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और बैलेंस। Okay, means when the number of electron and proton same, that means this is a electrically neutral. Okay, neither positive charge neither negative charge. Then the negative charge of the electron will cancel the positive charge of the proton, thus balancing the charge of the atom. Here see that two images in hydrogen atom, one proton and one
electron. Okay, here same in copper, number of proton equal to number of electron, that means electrically neutral. ओके अब मेन जो हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का कारण क्या है, रीजन क्या है, तो वो हमें जानना है। ये आप जो अभी एटॉमिक थ्योरी आपको मैं बता रहा था, ये आपको हमारे साइंस टीचर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, क्लास 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं। मेन जो हमारा फोकस है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का कारण क्या है, तो इसको हम समझे रहेंगे। तो आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा। When an atom loses or gain an electron, an imbalance occur, okay, means जब आयंस पार्टिकल क्या है, जब किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे एटम पे चला जाता है, तो इससे बोलते हैं आयंस। जैसे आपने देखा होगा, एग्जांपल हम ले यहाँ पर तो NaCl, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो Na के आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, NCl के आउटर में 17 है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 1 है, इसका 2 8 7, ठीक है। इन बोथ एटम in sodium or chlorine, the number of electron and number of proton same. In sodium में number of electron and number of proton same, and also in chlorine. अब for more stable ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को देता है हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और जिसने एक्सेप्ट किया दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। ओके, द एटम बिकम्स आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एन आयन। आयन को डिफाइन किया गया कि आयन है क्या, या तो वो पॉजिटिव आयन हो सकता है या नेगेटिव आयन हो सकता है। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के केस में आपने देखा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसने दिया है वह पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दैट इज 2 नेगेटिव चार्ज। Here see the positive ions and negative ions. Positive ions आप देख रहे हैं, here the number of electron and number of proton दोनों सेम नहीं है। ओके, मीन्स 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो है पॉजिटिव चार्ज, जिसने दिया पॉजिटिव चार्ज, और जिसने लिया नेगेटिव चार्ज। ओके, ion charge, a positive ion has one less electron than it has proton. A negative ion has one more electron than it has proton. The positive ion attract a negative ions to become balanced. This attraction of difference is electrical potential causes. जो मेन हमें बताना था उसी पर हम उस पॉइंट पर हम आगे कि द पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट अ नेगेटिव आयन टू बिकेम बैलेंस। बैलेंस होने के लिए पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण दिस अट्रैक्शन और डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल काज इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब इस अट्रैक्शन और डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं,
फ्लो करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द एटम at different orbit called ring orbit or shell. Ring orbit or shell. Here also you see that. अब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है न्यूक्लियस के चारों तरफ अकॉर्डिंग टू बोर बॉडी, इन फर्स्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इन सेकेंड सेल 8, देन 18, देन 32। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? बोर बड़े ने एक फॉर्मूला दिया था 2n² का, वेयर n is the number of cell. If the first cell, that is the first cell called K, L, M, N, इन सभी सेल को एक नाम दिया गया है। The first cell means near the nucleus, that is called K, then second L, and then third cell is M and N O, like that. Okay, then how will you find the number of electron in K cell? Then just put n is equal to 1 for K. Okay, in this formula when you keep n is equal to 1, then you find 2. That means in the K cell maximum number of electron is 2. Again we find L में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो just put n is equal to 2, then you have 8. Okay, so this is a number of electron in different cell, कितने इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सेल में रह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस रिंग एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे इस एटम की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस where present proton and neutron, and electron moves around the different cell. In first cell you see that the number of electron 2, okay, and in second cell number of electron 8, but here is 4. That means अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने और हो सकते हैं, 4 और हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, okay, that is called free electron. Okay, here also you see that in this cell number of electron, free electron is 1. Here number of free electron is 4. Okay, bound electrons orbit the nucleus on the inner ring. Okay. Bound electrons have a strong magnetic attraction to the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन जो K सेल है जितना है न्यूक्लियस के पास रहेगा उतने क्या है, वो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन मीन्स बहुत अधिक फोर्स से उसको वो अट्रैक्ट करता है। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट ऑन द आउटर मोस्ट थिंग विच इज नोन एज वैलेंस रिंग। ठीक है, जो ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है दिस इज कॉल्ड वैलेंस रिंग। ओके, एंड वैलेंस रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Here you see that free electrons, only the free electrons in the outermost cell, or it is called valence ring, are free to move from atom to atom. This movement is called electron flow. ठीक है, मीन्स जो एटम में आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वो ही फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, और इट इज
its outer shell is called valence ring. जितने भी वैलेंस रिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो. दिस these free electrons are loosely held and can easily be moved to another atom or ion. मीन्स इनमें क्या होता है, फोर्स जो होता है न्यूक्लियस का कम, दिस इज आउटर सेल, तो ये आसानी से थोड़े से फोर्स लगाने पे, थोड़े से वोल्टेज लगाने पर आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो कर सकते हैं. ओके, अब इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ये एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन के बारे में जानकारी थी. आगे फिर इससे आगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जानेंगे. इलेक्ट्रिक करंट को समझना है. जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इंस्ट्रूमेंट विच मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट, वाई एमीटर always connected in series relation between I, V and R. Okay, thank you बच्चों.